July 2024 I'm talking about, there are two big operators, they do not have pilots. पर हम कभी इस बारे में बात नहीं करते इस कोर्स के दौरान या इस नौकरी के दौरान अगर मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊँ तो क्या? Right. He told me anything I do out of SOP is unintentional. 70 to 75% of the accidents which have happened because of the non-technical skills or maybe the human errors. वो कहते हैं लोग कि ज़्यादा लोगों को बताया मत करो, वहाँ नज़र लग जाएगी। और मेरा मानना ये है कि अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं तो दुआएं कैसे लगेंगी? पर वही सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आज ऊपर पहुंचा रहे हैं या आगे कल को और ऊपर पहुंचाएंगे. 18.7 tons of fuel which we carry in 320 is the amount which we carry, is the fuel which we have it in 380 in the elevator. Wow, Huge. massive. Huge. तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि ये जो धागा बांधा हुआ है, जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, वो हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं. लोगों ने अपने फार्म हाउसेस में हेलीकॉप्टर्स पार्क करे हुए हैं टू फ्लाई टू अनदर लोकेशन. देयर इज नो एथिस्ट इन द कॉकपिट. जब आप मौसम में जाते हो ना, आपको ईश्वर सबसे पहले ही याद आता है. That's true. तो वो उसी तरीके से जो वो गॉड ही निकलता है, हाय माँ ही निकलता है सबसे पहले. सबका पैसेंजर्स का भी. Yeah. Oh my God, I never thought of that. Namaskar, my name is Ronak and welcome to Golden Epaulets podcast by pilots for pilots. In conversation with Captain Zainul Katani, I definitely want to hear more about his stories in Emirates and a couple of other things in aviation. And his opinion, I'm mesmerized for sure. I would love to continue listening to him. So we've got a bit more time with him. We were lucky enough. Let's go ahead and ask him a few more questions. Captain Zainul, thank you again. Thank you so much for listening to me. I would like to know that मैंने कभी किसी से ये पूछा नहीं है, but I'm just intrigued. हम हमेशा aircrafts के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. Now we have drones coming up and we have always had helicopters. Correct. There's something called a CHPL as well. Correct. Would you like to shed some light on CHPL? Oh yes, 100%. So you know what, हम इस टाइप के जो पॉडकास्ट में या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे आर द पीपल हु आर एस्पिरेंट्स टू बिकम अ पायलट. Yes. सो हम उस फनल में आ जाते हैं एंड वी आर ऑलवेज इनटू कि पायलट बनना है, पायलट बनना है, पायलट बनना है. क्या करना है, वही चाय वाली स्थिति कि हमें एग्जाम देने हैं, मेडिकल चाहिए और हम उसमें उतर जाते हैं. हम उसके आसपास की दुनिया को देखना बंद Yeah, so you're looking like this. Yes. You stop looking like Because this. दैट इज व्हाट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग. Exactly. तो हमने क्या देखा कि अच्छा ठीक है, पायलट बन रहे हैं, हम भी पायलट बन रहे हैं. उसके आसपास में दुनिया है, मतलब जो हम इतनी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. CHPL, टू स्टार्ट विद द फैक्ट, पुणे इन इटसेल्फ, अ स्मॉल सिटी, पुणे हैज़ 18 हेलीकॉप्टर्स बाय इटसेल्फ. लोगों ने अपने फार्म हाउसेस में हेलीकॉप्टर्स पार्क करे हुए हैं टू फ्लाई टू अनदर लोकेशन. 18 helicopters. At present, July 2024 I'm talking about, there are two big operators, they do not have pilots to fly their helicopters. And हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं. The cost is the same. CHPL cost comes the same. You have to do 150 hours. The price is little higher. India में आप नहीं कर सकते हो. India में there is no school to do it. You have to go abroad and do it. The exams are the same. So जिसके एग्जाम पास हो गए, he can still go to the flying school where they teach helicopter license. And you can also convert your CPL to You CHPL. can do that also. You have to do certain hours and then you can convert from CPL to CHPL. So people who are looking for a job still, so they can have an opportunity to do a CHPL, and the salary wise, they are at par, but nobody is thinking about it. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हम उस फनल में हैं. हम ये सोचते हैं कि हमने 12th कंप्लीट की है या फिर मुझे अपना करियर ऑप्शन स्विच करना है, और हमें बड़े बड़े एयरलाइन, हम हेलीकॉप्टर में इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं. तो वी सी एयरलाइन, वी सी एयरपोर्ट. लगता है थोड़ा ग्लैमरस भी लगता है. और ग्लैमरस वो भी है, पर हम वो तभी सोचते हैं जब वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, तभी हमें हेलीकॉप्टर दिमाग में आता है. बट द टाइम राइट. आए दिन आप रोज के ट्रैवल के लिए थोड़ा ना कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर यूज करते हैं. अब कर रहे हैं लोग,
You see, look at people. People are using to hop from one port to another. All the businessmen are using it, and the way general aviation is increasing, it's going very good. There is plethora of opportunities for CHPL holders. Same Understood. as you mentioned for the drones. Um, हम ये तो हमेशा हम कितने ऑप्टिमिस्टिक होके चलते हैं पायलट बनते वक्त. हम हमेशा इस बारे में ज़रूर बात करते हैं कि जॉब मिलेगी कि नहीं, इस बारे में बात करते हैं. पर हम कभी इस बारे में बात नहीं करते इस कोर्स के दौरान या इस नौकरी के दौरान अगर मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊँ तो क्या. Right, right. I agree. Most of us are just dreamy eyed and शुरू कर लिया तो खत्म तो हो ही जाएगा. कैसे भी करके हम खत्म कर लेंगे. We think everything, circumstances, medical, financial is under our control. Yeah. सब ये सोच के चलते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है. आपकी कंट्रोल से बाहर क्या है? कुछ भी नहीं. कुछ होगा तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी. करेक्ट. Which is very absurd. Looking back now, Correct. the kind of journeys all of us have had, which is very, very absurd. True. So CHPL has opportunities. You currently, what intrigued me was you're also a trainer for the leading airline in skills. Yes. How does that work? It's an amazing journey. I think so because of the experience. They were kind enough to give me an opportunity to teach the non-technical skills. Meaning, let me clarify it. You are a pilot who flies for a leading carrier. Also, you do some office work for them. You're also a trainer for them. Yeah, so I teach the crew, be it pilots or the cabin crew. Right. I teach them the non-technical skills. You know, Wow. 70 to 75% of the accidents which have happened because of the non-technical skills Okay. or maybe the human errors. And Still. Yeah. rather still now because अब तो हमारे एयरक्राफ्ट कितने अच्छे हैं. कंप्लीट ऑटो पायलट ऑटोमेशन उसमें भरपूर लगा हुआ है. आपको कुछ नहीं करना है बट स्टिल एक्सीडेंट्स हैपन. इंसिडेंट्स हैव बीन हैपनिंग. तो जब उनका उसके जब PIB होती है, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसमें 75% ये पता चलता है कि इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर. या तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए जो हो रहा था, या फिर आपसी मतभेद थे. आपसी मतभेद इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को कुछ बोल नहीं पाया, कैप्टन गलती कर रहे थे एंड उसके बारे में बात नहीं हो पाई, एंड थिंग्स हैव बीन हैपनिंग. सो ICAO mandates this course to the crew, be it pilot or be it cabin crew, that you have to undergo this. ऐसा कैसे हो सकता है कि एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो रहा है या होने वाला था और पीछे जो कैबिन क्रू थी उन्होंने इस चीज़ के बारे में उनको इत्तला नहीं दी, या फिर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से बात नहीं करी, कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कुछ नहीं बोला. तो इस बारे में देयर इज अ कोर्स बाय ICAO which is It's very interesting. And pilots and crew and everyone has to go through it. it's a mandate. Yes, every year you have to undergo this. Refresher भी करना पड़ता है. Every year. Wow. So we teach them few different topics about it. We tell them your human limitation. किताबें जो हैं वो आपको एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन तो बता रही हैं हाँ. कि इस एयरक्राफ्ट को इस विंड पे फ्लाई कर Absolutely. सकते हैं. Absolutely. कैबिन में ओवन यूज करना बता रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे आप उसको यूज कर सकते हैं. Right. पर आपकी अंदर की ह्यूमन लिमिटेशन कौन बता रहा Very nice. है? मे बी आप 30 नॉट्स क्रॉस विंड, हमारा एयरबस या एयरक्राफ्ट जो है वो बोलता है कि यू कैन लैंड विद 30 नॉट्स ऑफ क्रॉस विंड, Right. बट आई माइट नॉट बी हैप्पी और कंटेंट टू फ्लाई विद 30 नॉट्स ऑफ क्रॉस विंड. I may not be In- wanting to. मे बी वांटिंग टू Yeah. फॉर दैट पर्टिकुलर डे. Yeah. For that particular day. I may not be just having the greatest of days. True. So Yeah. in that case, who is there to stop you there in at 40,000 feet? Very surprising though. But very surprising that 75% of the accident, around 75, 76 still remains due to human factors. And very good to know that I think all our viewers would be really happy to know that you're in good hands, because not only the pilots are doing a non-technical skills course, but also refreshing it every year. They have to. So with the likes of you, and so I'm sure the classes must be very interesting as well. Do you like doing that? Oh yeah, I think so. I always wanted to do it. I always tried, how can I reach there? But the people who have been there have been the gems. And I had always looked up to them कि मुझे कभी ऐसा चांस मिले. And how does it feel right now, wherever you are in life right now? No, amazing. It has always been amazing. When I have hit the rock bottom, it has helped me in the personal life. Yeah. When I have reached to the peak,
It has helped me to bring my rest of my friends to the same level. So it has always been a journey, and it has always been a thank-giving position where I can thank my team. वो कहते हैं लोग कि ज़्यादा लोगों को बताया मत करो, वहाँ नज़र लग जाएगी। और मेरा मानना ये है कि अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं तो दुआएं कैसे लगेंगी। तो व्हेन आई अप्लाइड फॉर एनी ऑफ द एयरलाइन, आई वुड कॉल ऑल माई फ्रेंड्स, भाई प्लीज़ दुआ कर लेना, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो अच्छा होगा। तो जब रिजल्ट आया, स्क्रीनशॉट भेजा, तो मेरी खुशी होगी 2%, उनकी खुशी थी 98। I personally believe the same. I personally believe the same. दुआ में ताकत होती है, and I personally believe बताया करो. जी They start vibing in your favor. करेक्ट, I वो तकदीर बदल देती है, वो इसी चीज़ का नाम है। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में, और एक बार आपका कोई ड्रॉबैक आ जाएगा, कोई सेटबैक आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर that ATPL exam, that command interview, that airline which you have been wanting to go, or that wide body experience, something will fail. There will be much more to it. हम लोग क्या है कि ये हमारी एक फील्ड ऐसी है जिसमें हम फिलोसॉफिकल होना छोड़ देते हैं, इसमें हम बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अपटाइट हो जाते हैं कि नहीं नहीं टेक्निकल ये है, आपके 70 नहीं है, आप 69 आए मतलब फेल हो। देयर माइट बी समथिंग बेटर टू फिलोसफी जारी रखनी है मतलब. ज़रूरी है जिंदगी सारी रखनी थोड़ा सा लाइफ को फिलोसफिकल लेंस से देखना जरूरी है. हाँ, तभी तो आप ऊपर वाले पे विश्वास अगर होगे। वो बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि देयर इज़ नो एथियस्ट इन द कॉकपिट, देयर इज़ नो एथियस्ट इन द कॉकपिट। जब आप मौसम में जाते हो ना, आपको ईश्वर सबसे पहले ही याद आता That's true. है। तो वो उसी तरीके से जो वो गॉड ही निकलता है, हाय माँ ही निकलता है सबसे पहले. सबका पैसेंजर्स का भी। Yeah. Oh my God, I never thought of that. So There is no atheist in the cockpit. Absolutely. Well, that's amazing. Yep. That's amazing. Thank you so much for that insight. And Emirates के बारे में आपने हमें बताया, हमारे mentors के बारे में बात हो गई, और कोई आप हमारे साथ कोई वाकया शेयर करना चाहें? बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत कुछ तो सारे। बताइए, मैं तो कुछ तो full बताइए, of because story हूँ। like I already said, I can't get enough out of this conversation, so please go on. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, तो वो बताता हूँ। ये इस वजह से है कि कैसे सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में आता है कि यार अब वापस क्यों नहीं जाते हो, और Emirates? एमिरेट्स, हाँ. और ऐसा क्यों नहीं। हाँ. तो एक लड़की थी छोटी, वो अपने फादर के पास जाती है, बोलती मुझे पतंग उड़ानी है। तो उनके फादर जो है उनको लेके जाते हैं और पतंग उड़ाने के लिए आगे जाती है। वो पतंग उड़ाते हैं और वो पतंग अपने ऊपर तक पहुंच जाती है, टिल द पॉइंट द स्ट्रिंग रीचेस टू इट्स एंड। जो धागा होता है, मांझा होता है, वो एंड तक पहुंच जाता है। तो लड़की बोलती है कि बाबा ये जो पतंग है ये इससे ऊपर इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि धागा जो है इसको रोक रहा है, ये नहीं तो इससे भी ऊपर जा सकती है। तो उसके फादर बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो शी लाइक नहीं नहीं आप इसको कट करो, ये और ऊपर जाएगी। तो उसके फादर टू टीच हर वो धागा कट करते हैं, एंड देन इट टॉपल्स डाउन एंड रीचेस टू द ग्राउंड। तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि ये जो धागा बांधा हुआ है, जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, वो हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं। पर वही सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आज ऊपर पहुंचा रहे हैं, या आगे कल को और ऊपर पहुंचाएंगे। द सेम देयर हैव बीन circumstances, there have been responsibilities which have been bestowed upon, and which keeps me here Grounded, humble, and in India, which I'm geographically sure geographically correct. So I'm sure there is much more to it. Coming to the instances, obviously हम यहाँ से गए थे नैरो बॉडी फ्लाई करके, तो हमारे लिए ये चीज़ें थी कि हम 25 मिनट में टर्न अराउंड होना चाहिए। फ्लाइट में वॉशरूम गए तो 2 मिनट में वापस पहुँच जाओ, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग। पहली चीज़ थी SLF, 6 continents of SLF. 6 कॉन्टिनेंट। अच्छा, Fancy. और Thank you. कुछ सो फिर पहली फ्लाइट का बताता हूँ। सो आई वेंट फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट, एंड देन देयर इज़ द कल्चर वेयर इफ़ यू आर पायलट फ्लाइंग, so you have to do briefing for everyone. Okay. So the cabin crew are about 24, 26, 28 cabin crew you have. So you knock on the door of their room and in the dispatch, and you go and meet them and talk to them. So पहली बार एनकाउंटर, दरवाज़ा खोला, 26 लोग दुनिया की सारी जगह से आए हुए हैं। कोई यूरोप से है, कोई यूके से है, कोई अफ्रीका से है, So कोई इंडिया cosmo. से। सो कॉस्मो। एंड दुनिया से सारे लोग आए हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इट्स
कि वो आपको साक्षात सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो. You're right. तो आप ये फ्लाइट कैसे हम ऑपरेट करेंगे, इट्स अ मिशन फॉर एवरीवन. हाउ वुड वी टेक दिस फ्लाइट फॉरवर्ड. एंड दे इट्स नॉट कि आप फर्स्ट ऑफिसर हो या आप कैप्टन हो या आप सेकंड ऑफिसर हो. इट्स अबाउट द पर्सन हु इज स्पीकिंग हैज टू बी लिसन टू. Amazing. That's the culture? That's the culture. Amazing. And you get your due respect, huh? Oh, 100%. The way, the time, so the person who's flying, he comes forward and then उस रूम में शांति हो जाती है. Wow. And then people start speak I love that. So since I was pilot flying, so I would talk about it. How much time will it take? How is the weather? What things to keep in mind? And then they would confirm it. And then a little icebreaker also that we get to know each other. That how it is. It's and all always of that. needed. Yes. So that was one. उसके बाद यहाँ से dispatch से ख़त्म हुआ, aircraft पहुँचे, went for the walk around. Oh my goodness, हमने 320 पे walk around किया है, 3-4 मिनट walk around complete और थॉरो walk around हो जाता है. नीचे उतरा तो यहाँ तो फुटबॉल का मैदान, वो तो एयरक्राफ्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट. नीचे पहुँचे, व्हील्स इतने सारे हैं. एंड देन टू योर नॉलेज द एलिवेटर, द पीछे वाला जो विंग है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम विंग ऑफ 320 एज एन एलिवेटर ऑफ 380. 18.7 तो tons 320 का विंग है, वो 380 का एलिवेटर है. 18.7 tons of fuel which we carry in 320 is the amount which we carry, is the fuel which we have it in 380 in the elevator. Wow, Huge. massive. Huge. 250 odd tons of fuel we can carry. Massive. 575 tons. And you of- get to fly the beast. Yes. So Wow. I was lost in the walk around. I like. रास्ता नहीं मिल रहा, वापस कहाँ जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ? ये कहाँ आ गए? And then eventually the flight went really well. And after landing, there would be people who would come to you and they'll be like, you know what, can we take a picture with an A380 pilot? हमने सोचा कि भाई हम तो लोगों को देखते हैं ताजमहल में अंग्रेजों के पीछे जाके फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ अंग्रेज हमसे फोटो खिंचाने आ रहे हैं ना. हाँ, ओके, ऑलराइट. Regardless of your nationality, क्या? Exactly. Just because you're wearing that, donning that uniform, you know, 100%. and flying that craft. Yeah. It's the worth of your craft. Amazing, amazing. And has there been, ऐसा होता है ना कि मेरे को भी कुछ इंडिविजुअल्स याद है जिन्होंने मुझे कुछ बातें बोली हैं जो मेरे जहन में बस चुकी है. Yeah. लाइक हर चीज़ नहीं बसती है, बट Yeah. वो कुछ बातें हैं. तो किसी ने कभी आपको एमिरेट्स में कोई एक मेमोरी, किसी ने कुछ बोला हो विच यू हैव मेड यू नो अ मंत्रा फॉर योर लाइफ? Oh yes. So you know the best or the beauty about aviation is it's a multi-crew cockpit. हाँ. आप खुद से जहाज नहीं उड़ा सकते हो. You बिल्कुल. have to have two people and they both have to be on the same page. टीम वर्क. 18 साल का लड़का और 65 साल का बुजुर्ग, रिटायरमेंट गवर्नमेंट में 60 साल पे हो रहा है, पायलट 65 पे हो रहा है रिटायर, तो 5 साल और ज़्यादा काम कर रहा है. तो उसको कैसे वो 18 साल के बंदे के साथ कैसे ट्यूनिंग बिठाएगा, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो आई रिमेंबर देयर वाज अ गाय विद whom I was paired and he was in his late 60s, maybe 63, 64. And you were in your 20s. And I was in my 20s. So I reached there and we were doing our briefing in the aircraft. And he told me one simple sentence which just changed my world. He told me, anything I do out of SOP is unintentional. It took me a while to understand. Basically, he just opened himself to me that I will make mistakes and it's your duty to correct me. Do not shy away. Do not think that I'll feel bad about it. I'm using this too. Sorry, Captain Zainul, guilty as charged, but I'm using this. Whoever that wise man Oh, was, yes. Yeah. you know, he knows. Hats off to him. 100%. So, on that note, I'm using that too. On that note, I think we have to come with a part 3 to talk about a couple of more things. Well, over to you. Bye, pilots, for pilots. This was Golden Epaulets podcast, and we are waiting for part 3 now with Captain Zainul Khatani.